ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਐਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਰੱਬ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ ਜਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 100 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੋ। 100 ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਦਾ
सोचन लग पिया 100 बोरियां तो मैं खा ही नहीं सकता, ते ये तां खराब हो जाणगियां। वो कहना 100 बोरियां जे मैं एक बोरी खा लूं, 2 खा लूं, उस तो बाद ही मरना ही आ, क्योंकि सारा कुछ तो मैंने एक बार ही मिल गया, हुण तां मैनूं मिलना ही नहीं। वो कहना चलो छड्डो कोई नहीं, महीने 2 महीने बाद ही मरना आ, हफ्ते बाद ही सही। उन्हें सामने क्या बंदे नूं कहंदा है सारियां बोरियां दा लंगर ला दिओ। 100 बोरी दा लंगर ला दिता गया। हुण भिखारी कोल कुछ भी नहीं बचिया खाण लई। प्रभु ने देखिया ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 10 ਸੇਠ ਆਉਂਦੇ 10 ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ 100 ਬੋਰੀਆਂ 10 ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਸੇਠ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ 1000 ਬੋਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ 1000 ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੂਆ ਹੈ ਨਾ ਲੋਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜ਼ਬੂਰ ਭਜਨ ਸਹਿਤਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। पंजाबी च लिखिया है हे यहोवा तड़के नू मेरा शब्द तेनू सुनाई देगा। कितने बजे? तड़के कितने बजे होंदा? 9 बजे, 4-5 बजे ये है तड़के। हुण बोलो हे यहोवा तड़के मेरे कढ़ाड़े तेनू सुनणगे। हे यहोवा तड़के मेरी वाणी तेनू सुनाई, मेरी प्रार्थना तेनू सुनाई देवेगी। मेरी आवाज तेनू सुनाई, मेरी आवाज तेनू सुनाई देवेगी। आमीन, आमीन। जिन्ने भी लोग तड़के उठते हैं मेरे के शब्द नू रिसीव कर लो। एक ही शब्द काफी है तुहाडे लई। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ
जे बीमारी तुहाडे उत्ते है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ खुद आप हो, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ 9 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, 9 ਵਜੇ ਸੂਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ 10 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਮਨੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੌਵੋ ਔਰ ਤੜਕੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 35 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ। मरकुस की अंजील 1 अध्याय की 35 आयत पढ़ो। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तड़के सवेरे उठे, भोर नूं बाइबल च लिखिया तड़के, अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के प्रभु यीशु मसीह उठे, बाइबल च लिखिया। और प्रभु यीशु मसीह जंगली स्थान में चले गए प्रार्थना करने के लिए। जंगली स्थान में चले गए, एकांत में चले गए, जिथे कोई नहीं सी, उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह गए कि प्रभु यीशु मसीह को कोई डिस्टर्ब ना कर सके, प्रभु यीशु मसीह को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जे तुसी उठ के तुसी उठे 8 बजे 10 बजे तुसी अपने घर च प्रार्थना करन दे, तुहाडा फोन बज गया, तुहानू खिज आ गई, ये बची जांदा, गलत तुसी हो, फोन नहीं है उस समय। जे तुसी अर्ली मॉर्निंग उठोगे 4 बजे तुहानू कोई कॉल नहीं करेगा, 4 तो 6 बजे 7 बजे तक तुहानू कोई कॉल नहीं करता, तुहानू कोई ऑफिस तो कॉल नहीं आउंदा, तुहानू कोई बिजनेस की कॉल नहीं आउंदी। तुसी सवेरे 4 तो 7 बजे तक प्रार्थना कर सकते हो और परमेश्वर तुहाडा सहायक होएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की एक हैबिट सी, प्रभु यीशु मसीह की एक आदत सी। प्रभु यीशु मसीह जहां ता पूरी पूरी रात प्रार्थना करते, जहां प्रभु यीशु मसीह तड़के उठ के प्रार्थना करते सन और परमेश्वर उन्हां दी सुन लेंदा सी। प्रभु यीशु मसीह कहते सन, मेरा पिता मेरी सुनता है, मेरा पिता मेरी सुनता है। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर दी कबर ते गए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता मेरी आवाज नूं सुन लेंदा है। लाजर कबर चों बाहर आ, ते लाजर कबर चों बनिया बनाया बाहर आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते सन मेरा पिता मेरी सुनता है। जदों असीं प्रार्थना करते हां, ऑलमोस्ट 90% सानू 90% पहला ही पता होता है जेड़ी प्रार्थना सी कीती है ये पूरी हो चुकी है, खुदावंद ने इन्हू सुन लिया है। लेकिन बहुत घट प्रार्थनावां होंदियां हन। अगर परमेश्वर साडी 100% प्रार्थना
प्रार्थना सुननी शुरू कर देवे, हो सकता साडे विच घमंड आ जावे। परमेश्वर इसे लई सारियां नहीं सुनदा। पर धन्नवाद है। एक व्यक्ति, शायद तुहानू एक स्टोरी याद होवे, एक बंदे ने पता नहीं करा वरदान मंगया, कहना जिन्नू हथ लावां सोना बन जावे, कहना इदां दा वरदान मिले। तां सेबां नू हथ लाया तां सेब सोना बन गया, रोटी नू हथ लाया तां रोटी सोना बन गई। इसलिए परमेश्वर 100% प्रार्थना नहीं सुनदा, और अच्छी गल है ना सुने, क्योंकि कुछ प्रार्थनावां तुसी परमेश्वर दी पवित्र आत्मा दी प्रेरणा द्वारा करते हो, कुछ प्रार्थनावां अपने मन दी मर्जी नाल करते हो। जेड़ियां मन दी मर्जी नाल प्रार्थनावां कीतियां जांदियां, जेड़ियां अपनी इच्छा नूं पूरा करने लई प्रार्थनावां कीतियां जांदियां, जेड़ियां प्रार्थनावां परमेश्वर दे नाल कोई ओनू परमेश्वर दे राज विच कोई फायदा नहीं, परमेश्वर नहीं सुनदा। व्यर्थ दीयां प्रार्थनावां नूं परमेश्वर नहीं सुनदा, व्यर्थ दीयां प्रार्थनावां नूं परमेश्वर नहीं सुनदा। सो परमेश्वर दे अगे तुसी प्रार्थना करो, और अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे तड़के उठ के हर एक व्यक्ति सवेरे तड़के उठ के प्रार्थना करनी शुरू करे। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया, ਅਸੀਂ वचन देखते हाँ, मरकुस दी अंजील 16 अध्याय ਉਹਦੀ 2 ਅਤੇ 3 आयत, 1 2 ਤੇ 3 आयत। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। बाइबल लिखा सब्त दा दिन सी, सब्त दा दिन सी, मरियम मगदलीनी, याकूब दी माता मरियम, सलोमी सारियां कब्र दे उत्ते आ रहीआं हन। जदों प्रभु यीशु मसीह नूं कब्र विच दफनाया गया, सारियां औरतां सुगंधित चीजां नूं लैके, मलण वाले एलवे नूं लैके प्रभु यीशु मसीह दी डेड बॉडी नूं मलण दे लई ओ आ रहीआं हन। और जदों सवेरे बाइबल लिखा बड़े तड़के उठ के, बड़े तड़के उठ के, हजे सूरज निकलिया नहीं सी, बाइबल च लिखिया वो ये सोच रही सन, तड़के उठ के जदों वो आ रही, वो ये सोच रही सन कि जिहड़ी कब्र है, कब्र तो पत्थर नूं कौन हटाएगा। जिहड़ा कब्र दे मोरे पत्थर पिया है, उस पत्थर नूं कौन हटाएगा। लेकिन उन्होंने उससे प्रार्थना नूं, उससे काम नूं कीता जिस काम नूं यीशु मसीह करदे सन। यीशु मसीह तड़के उठ के प्रार्थना करन लई जांदे सन, वो भी तड़के उठ के नियम दे अनुसार प्रार्थना करदियां सन। उन्हां दी आदत सी तड़के उठना, उन्हां दी आदत सी। इसे लई ओ दोपहर दे 1 वजे नहीं गईयां, ओ शाम दे 5 वजे नहीं गईयां, ओ सवेर दे 3-4 बजे उठियां, और 3-4 बजे उठ के प्रभु यीशु मसीह दी कब्र ते जा रहीआं हन, और अपने मन विच सोच रहीआं हन कि कब्र दा पत्थर कौन हटाएगा, कब्र दा पत्थर कौन हटाएगा। जद उत्ते पहुंचियां, उन्होंने की देखिया, जिहड़ा कब्र दा पत्थर है ओ हटिया होया है, ओ हटिया होया है, ओ हटिया होया है। मैं तुहाडे जीवन ते भविष्यवाणी करदा हां, यीशु मसीह दे नाम दे अंदर जिहड़ा पत्थर तुहाडे सामने है ओ हट जाएगा। जब तुसीं परमेश्वर दे अगे सवेरे उठ के प्रार्थना करोगे, पत्थर तुहाडे सामने हट जाएगा, यीशु मसीह दे नाम विच। हर एक रोग दा पत्थर, हर एक बीमारी दा पत्थर, हर एक बोझ दा पत्थर, गरीबी दा पत्थर, दुर्बलता दा पत्थर, बीमारी दा पत्थर तुहाडे सामने तुहानू हटिया होया मिलेगा यीशु मसीह दे नाम विच। ओ तुहानू हटाउण दी जरूरत नहीं पएगी। परमेश्वर दे सरदूत उतरनगे, और परमेश्वर दे सरदूत ओ पत्थर नू तुहाडे सामने हटा देणगे। जिस तरह मरियम मगदलीनी और सलोमी और मरियम ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ, स्वर्गदूतां ने पत्थर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मीन्स मतलब अगर ਤੁਸੀਂ अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ਦੇ स्वर्गदूत ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। बोलो आमीन, बोलो आमीन।
परमेश्वर दे सरदूत तुहाडी सहायता करनगे, परमेश्वर दे एंजल तुहाडी सहायता करनगे। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो ध्यान नाल, जदों 3 औरतां आ रहीआं होण सवेरे उठ के तड़के, और उन्होंने होर किसी नूं दस्सिया नहीं, जदों 3 औरतां कि वो निर्बल हन, बलवान नहीं हन, बलवान नहीं कहना रहे, 3 औरतां आ रही सी, वो आपस च गल्लां करदियां होणगियां, पत्थर नूं कौन हटाएगा? साडे विच इन्नी सामर्थ नहीं कि वो 3 जने भी जोर ला के पत्थर नूं हटा देण। हर एक पत्थर तुहाडे सामने हट जाएगा, हर एक पत्थर तुहाडे सामने हट जाएगा, जे सिर्फ तुसीं एक सवेरे उठ के एक्शन करोगे प्रार्थना करन दा। हर एक पत्थर तुहाडे सामने हट जाएगा। उन्होंने एक्शन किया, वो उठियां, वो सुगंधित द्रव लेके गईयां, उन्होंने एक्शन किया तो पत्थर हटिया हुआ सी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल के अंदर ਅਸੀਂ देखते हाँ, अगर ਤੁਸੀਂ ध्यान ना देखो वचन ਨੂੰ पढ़ो, यहोशू ਦੀ पुस्तक 6 अध्याय ਉਹਦੀ 12 आयत वचन पढ़ो। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। 16 आयत तक पढ़ो। और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हालेलुया, हालेलुया। जदों परमेश्वर ने यहोशू नूं कहा, जदों यहोशू ने कनान विच परमेश्वर दे लोकां नूं लेके जाना सी, मूसा 22 लाख लोकां नूं छुड़ा के लेके आया, लेकिन जदों वो यहोशू ना होए, वो लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए, उन्हां दी गिनती ऑलमोस्ट डबल हो गई, 40 लाख के करीब हो गई। और 40 लाख लोगों का पास्टर ते कलीसिया सवेरे तड़के उठती है, सारे लोग तड़के उठते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। परमेश्वर ने कहा कि तुसी तड़के उठ के परमेश्वर की वाचा का संदूक लैके, परमेश्वर के याजकां नूं लैके, लोकां नूं लैके, तुरियां लैके तुसी की करना है, बड़े तड़के उठ के वाचा दे संदूक नूं लैके, याजकां नूं लैण लाके, तुरियां नूं नाल लैके, नरसिंगे फूकदे हुए यरीहो दे सारे पासे तुसी चक्कर कटने हन। और तड़के उठ के वो रोज एक चक्कर काटते सन, रोज एक चक्कर काटते सन तड़के उठ के। जे यरीहो शहर, सुनो ध्यान ना, जे यरीहो शहर 5 या 6 किलोमीटर चौड़ा होवे, 6 किलोमीटर होवे या 10 किलोमीटर होवे, 10 किलोमीटर तो होएगा, 10 किलोमीटर होवे तां एक चक्कर कटना 10 किलोमीटर का लोकां लई थोड़ा औखा है। वो 10 किलोमीटर चक्कर कट सकते हैं एक दिन च। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने आज्ञा कुछ बदल दी। परमेश्वर ने 7वें दिन कहा 7 चक्कर कटने हैं। किन्ने किन्ने हुण एक दिन च 10 किलोमीटर का सफर तय करना सौखा है सवेरे उठ के। हुण 7 चक्कर मतलब जे एक चक्कर का 10 किलोमीटर है ते 7 चक्कर का कितना होया 70 किलोमीटर। एक दिन च हथियार तक के नरसिंगे फूकते हुए हो सकता है वो किन्ने बजे उठे होंगे। जे मान लो रोज 5 बजे उठते सी तो मैनू नहीं लगता उस दिन 5 बजे उठे होंगे।
ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 12:01 ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਲੋ ਨਰਸਿੰਘੇ। समझ आ रही? समझ आ रही? ਚੱਕ ਲੋ ਤੁਰੀਆਂ, ਚੱਕ ਲੋ ਨਰਸਿੰਘੇ, ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा 15 ते 16 आयत पढ़ो। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे। यहोशू 6 दी 15 ते 16 आयत। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਹਨ, 7। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 7 ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, 7 ਚੱਕਰ 21 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਫੂਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਫੂਕੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਖੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਖੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। हर एक यरीहो की दीवार गिर जाएगी तुम्हारे सामने हो, पर तुहानू एक काम करना पड़ेगा, एक एक्शन तुहानू करना पड़ेगा। कलीसिया यहोशू दी कलीसिया ने काम किया कि तुसी परमेश्वर दी कलीसिया काम नू पूरा करोगे। जदों ही तुसी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर दे दूत तुहाडे नाल प्रार्थना करनगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय के अंदर मैं एक दिन असी पूरी रात बैठे सा, प्रार्थना कर रहे सा, और 4 बजे पूरे 4 बजे मैं अपने रूम से निकल के प्रेयर रूम चला गया। प्रेयर रूम से जाकर प्रार्थना करने लगा, और मैनू प्रभु की आत्मा ने कहा तू प्रार्थना नहीं करनी, तू आराधना कर, तू आराधना कर, ते नच के आराधना कर। तो मैं नच के आराधना करनी शुरू की थी। मैं की देखा, उस समय परमेश्वर के दूतां दी फौज आई, परमेश्वर दूतां दी फौज आई, और परमेश्वर दूतां दी फौज आई, और फौज मेरे नाल आके नच के दूत प्रार्थना करने लगे, नच के दूत प्रार्थना करने लगे। ओ अनुग्रह तुहाडे उत्ते होई यीशु मसीह दे नाम विच, ओ फेवर तुहाडे उत्ते होई यीशु मसीह दे नाम विच, ओ फेवर तुहाडे उत्ते भी आई यीशु मसीह दे नाम विच। परमेश्वर दे दूत उतरन तड़के तुहाडे घरां दे अंदर, परमेश्वर दे सरदूत तड़के तुहाडे घरां विच उतरन, और तुहाडे नाल प्रार्थना करन, तुहाडे नाल आराधना करन, परमेश्वर दी स्तुति करन, और तुहाडे घरां विच बंधन टुट जाण। हर एक गरीबी का पहाड़ हट जाए, हर एक कर्जे का पहाड़ हट जाए, यीशु मसीह दे नाम में। हालेलुया। ये वचन जो 12 बजे उठते उन्होंने पूरा नहीं होएगा। जेडे दोपहरे 12 बजे उठते, जेडे दोपहरे 8-9 बजे उठते, उन्होंने वचन पूरा नहीं होएगा। वचन उन्होंने पूरा होएगा जेडे सवेरे 3-4 बजे उठ के परमेश्वर के प्रार्थना करेंगे, अपने घुटने टेक लेंगे। परमेश्वर दूतां दा छापा तुहाडे ते पेगा। मैं तुहाडे जीवन ते भविष्यवाणी करदा हां, परमेश्वर दे दूतां दा छापा तुहाडे घरां विच पेगा। परमेश्वर दूतां दी
इन्वेस्टिगेशन तेरे घर में होएगी। परमेश्वर दे दूत तेरे घर में इन्वेस्टिगेशन करनगे, मीन्स इंटरवेंशन करनगे, तेरे नाल आके रहेंगे, तेरे नाल आके और तेरी इन्वेस्टिगेशन करनगे कि तेरी पेट में पत्थरी तो नहीं, जो तेरे पेट में पत्थरी है वो तेरी इन्वेस्टिगेशन करनगे। परमेश्वर दे दूत तेरे पेट में हाथ पाउणगे, तेरे पेट में हाथ पाउणगे, सारियां पत्थरियां करके बाहर रख देंगे यीशु मसीह दे नाम में। आज तो बाद अपना सोचना बदल दो, अपना उठना बैठना बदल दो। आज तो बाद रात को लेट सोना बंद कर दो, रात को जल्दी सोवो और सवेरे जल्दी उठो, ताकि परमेश्वर की सामत तारे उत्ते आए, परमेश्वर की सामत तारे परिवार में आए। तुसी गरीब क्रिश्चियन नहीं होंगे, नो गरीब क्रिश्चियन, तुसी रिच कलीसिया कहलाओगे, रिच लोग बन जाओगे। परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में अनुग्रह करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। और जिंदा खुदा है, और जिंदा खुदा है, और जिंदा खुदा है। जिन्ना उस परमेश्वर के नाल रहोगे वो ताड़ी सोच नूं बदलदा जाएगा। कुछ लोगों नूं गल्लां हजम नहीं हुंदियां, बिल्कुल नहीं हो सकदियां, क्योंकि तुहाडा जीवन प्रार्थना वाला नहीं। जेड़ा जीवन प्रार्थना वाला नहीं वो उस गल नूं हजम नहीं कर सकता। बाइबल में परमेश्वर का वचन आखदा, एक सरदूत यूहन्ना को आया, और सरदूत ने यूहन्ना नूं कहा, यूहन्ना आ किताब ले ते खा ले, किताब ले ते खा ले, किताब ले ते खा ले। बाइबल में कहा यूहन्ना ने खा ली, यूहन्ना के मुंह में मिठी लगी पर पेट में कौड़ी लगी। खान का की मतलब है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितने लोग जानते हैं? ओके गुड। उसका जीवनी पढ़ सकते हो, उन्होंने जीवन तुहानू सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं कुछ किताबां नूं देखदा हां, मैं कुछ किताबां नूं देखदा हां, सिर्फ देखदा हां। ते उन्हें दूसरी गल कही, कहना कुछ किताबां नूं मैं पढ़दा हां, कुछ किताबां नूं मैं मतलब कुछ किताबां नूं मैं देखदा देखदा किताब जे मेरा मन नहीं करता नहीं पढ़नी, देख के छड़ देती, नहीं पढ़ती। कहना कुछ किताबां नूं मैं पढ़दा हां, उन्हें की कहना पढ़दा हां, टाइटल खोलिया, टाइटल जो किताब अच्छी लगी उन्हें पढ़नी शुरू करती और किताब नूं पढ़िया। तीजी गल उन्हें कही, कहना कुछ किताबां नूं मैं खा जाना हां। उन्हें एक गल बाइबल तो सीखी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक गल बाइबल तो सीखी, उन्हें कहा कुछ किताबां नूं मैं खा जाना हां। एक किताब ना देखण लई आ, ना पढ़न लई आ, एक खाण दे लई किताब है। मैं कहा एक किताब ना देखण लई आ, ना पढ़न लई आ, एक खाण दे लई किताब है। खा जाओ इस किताब नूं, खा जाओ बाइबल नूं। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲੋ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। और ये बॉटल भी बहरीन तो आई है, जलंधर के किसी शोरूम तो नहीं आई। मैं तुहानू एक गल दसदा, इट इज वेरी कॉस्टली टू मी, ये बहुत महंगी है मेरे लिए, बहुत कीमती है मेरे लिए, क्योंकि मैनू परमेश्वर ने भेजी है।
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 50 अध्याय ਉਹਦੀ 4 आयत की लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, और भोर को ही वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। बोलो आमेन, बोलो आमेन। ये सेकंड वर्स पढ़ो, यशाया 50:4 सेकंड वर्स। भोर का वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। बाइबल च लिखा, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है। तड़के परमेश्वर मैनू उठाता है ते मेरे कन्नां नू खोल दिंदा है। यशाया इस गल नू क्लेम करता है। बोलो सारे ने, बोलो तड़के परमेश्वर यहोवा मैनू उठाता है, मेरे कन्नां नू खोलता है ताकि मैं चेले दे समान सुना। आमीन। हुण जिहड़ा व्यक्ति रात नू सास भी कभी बहुत ही नाटक देके सोवे तो सवेरे 5 बजे कितना उठ जू, 4 बजे कितना उठ जू। रात को जो फिल्मां देख के सौंदे हैं, यूट्यूब देख के सौंदे हैं, फेसबुक देख के सौंदे हैं, वो तड़के नहीं उठ सकते। उन्होंने रात को गंदे गंदे सपने आते हैं, गंदे गंदे मुर्दे आते हैं, गंदे गंदे हाथ आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर परमेश्वर के वचन नूं नहीं पढ़ते, अपने अंदर इंटरनेट का कूड़ा भरते हैं। की भरते हैं? पूछो जरा एक दूजे नूं कि तुसीं रात नूं अपने अंदर इंटरनेट का कूड़ा तां नहीं भरदे। अपने अंदर परमेश्वर के वचनां नूं भरो, अपने अंदर परमेश्वर के बीज नूं भरो, अपने अंदर परमेश्वर के वचनां नूं भरो। जे तुसीं बाइबल पढ़ नहीं सकते, बाइबल नूं सुनो। जे बाइबल सुन नहीं सकते, यूट्यूब के उत्ते बाइबल नूं लगा लो, ऑडियो बाइबल सुनो। परमेश्वर के वचन नूं भरो अपने अंदर, कुट कुट के परमेश्वर का वचन अपने अंदर भरो, कुट कुट के परमेश्वर का वचन अपने अंदर भरो। परमेश्वर के वचन नूं खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। आज यूहन्ना नूं खाओ, कल मत्ती नूं खाओ, परसों यिर्मयाह नूं खाओ, फिर यशायाह नूं खाओ। फिर यशायाह नबी आएगा ते घुटने टेक के तुहाडे नाल प्रार्थना करेगा, फिर यिर्मयाह नबी आएगा तो घुटने टेक के तुहाडे नाल प्रार्थना करेगा, फिर यूहन्ना नबी आएगा तो घुटने टेक के प्रार्थना करेगा और कहेगा मैं जिंदा हूं। हालेलुया। जिहदे कान होण सुन लवे आत्मा कलीसिया नूं की कह रहा है, क्योंकि ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। इसलिए मेरा परमेश्वर तुहाडे ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ खोल देवे, मेरा परमेश्वर तुहाडीਆਂ आत्मिक ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ खोल देवे ताकि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ आवाज ਨੂੰ सुन सको और तुहाडे ਕੰਨ खुल जाण ਤਾਂ परमेश्वर ਦੀ आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, परमेश्वर ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। हालेलुया। बाइबल च लिखिया, निर्गमन की पुस्तक, कूच की पुस्तक 34 अध्याय खोलो, ओदी 1 ਅਤੇ 2 आयत वचन नु पढ़ांगे। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय ओदी 1 ਅਤੇ 2 आयत नु पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हालेलुया, हालेलुया।
सुनो ध्यान दे नाल, परमेश्वर इस जगह ते मूसा नाल गल कर रहा है। यहोवा इस समय मूसा नाल गल कर रहा है। पहली गल परमेश्वर यहोवा ने की? परमेश्वर यहोवा ने मूसा नूं कहा, मूसा ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ मैं अपनी उंगल नाल लेके तैनूं दित्तियां, तू पहला तोड़िया उन्हां नूं। मूसा कौन सी? आवाज नहीं आ रही। मूसा कौन सी? आवाज नहीं आई। परमेश्वर दा दास, परमेश्वर दा नबी, परमेश्वर दा नबी सी। सुनो, आ मैनू बोल दी, और जे मैं थोड़ा लेके उसे तोड़ दवा, इनू चिप चिप कर दवा, कीमती है मेरे लिए। परमेश्वर ने अपने हत्थां नाल अपनी उंगल नाल लेके तख्तियां मूसा नूं दित्तियां। मूसा पर थल्ले नहीं आया, हजे जिद्दां ही थल्ले आया नाल ही तोड़ दित्तियां। तुसीं आज्ञा तोड़दे हो परमेश्वर दी। मूसा नाल के थल्ले आके तख्तियां, थल्ले आके तख्तियां कितनियां कीमती सी, ओह कितनियां इंपॉर्टेंट सी। ओह तुहाडे घर दी रजिस्ट्री नालों भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्री पढ़ी किसी ने? रजिस्ट्री छोड़ो, बयाना पढ़िया किसी ने? जब रजिस्ट्री आती बयाने की कीमत नहीं कोई रही। बयाना पढ़िया किसी ने कभी? कितनियां इंपॉर्टेंट चीज। मूसा आया, ठा थल्ले आके तोड़ दित्तियां। परमेश्वर की आज्ञा ही तोड़ती। परमेश्वर आखदा, मूसा जेड़ियां तख्तियां तैनूं मैं पहला दित्तियां, परमेश्वर दसदा उन्होंने, उन्होंने तोड़ दिता। हुण परमेश्वर कहंदा, तड़के तैयार रही मूसा। परमेश्वर मूसा नूं कहंदा, मूसा कल तड़के, कल तड़के, कल तड़के, कल तड़के। कलीसिया मैं परमेश्वर दा याजक हुंदा तुहानूं कहना हां, कल तड़के तैयार रहियो सारे ने यीशु मसीह दे नाम विच। कल तड़के तैयार रहियो यीशु मसीह दे नाम विच। परमेश्वर तुहानूं कुछ आज्ञावां देवेगा। परमेश्वर तुहानूं कुछ नियम देवेगा। परमेश्वर तुहानूं कुछ करन लई कहेगा। लेकिन ये वचन उन्हां लोकां लई है जिन्हां दे कंन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने खोले हन, जिन्हां दी अखां नूं पवित्र आत्मा ने खोलिया है। ये वचन उन्हां लोकां लई है, ये वचन उन्हां लोकां लई है जिन्हां दे कन्नां नूं पवित्र आत्मा खोलदा है और जिन्हां दा आत्मा ओदी आवाज नूं सुनदा है। ये वचन उन्हां दे है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं सीने पर्वत के उत्ते खड़ा रहांगा, मैं सीने पर्वत के उत्ते खड़ा रहांगा, तू तड़के आके मैनू मिल। बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर आखदा, मूसा तड़के आके मैनू मिल। परमेश्वर तुहानू तुहाडे घर दे अंदर तड़के मिलेगा यीशु मसीह दे नाम विच। तुहाडे बेडरूम विच परमेश्वर तड़के तुहानू मिलेगा यीशु मसीह दे नाम विच। तुहाडे ड्राइंग रूम दे विच परमेश्वर तड़के तुहानू मिलेगा यीशु मसीह दे नाम विच। तुहाडे किचन दे अंदर परमेश्वर तड़के तुहानू मिलेगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। बोलो आमीन। तुहाडे कोठे दे उत्ते परमेश्वर तुहानू मिलेगा तड़के उठ के यीशु मसीह दे नाम विच। बोलो आमीन। तुहानू पहाड़ां च जाण दी लोड़ नहीं, पुठियां सीधियां बंदबाजियां मारन दी लोड़ नहीं। मारदे बंदबाजियां पुठियां सीधियां कि नहीं? और डंडा जा रख के परमेश्वर जिंदा है। बोलो आमीन। कहो अपने गुआंढी नू, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है। हुण कहो तेरे नाल रहिंदा है, ओ तेरे नाल रहिंदा है, ओ तेरे नाल रहिंदा है। जिंदा खुदावंद तेरे नाल रहिंदा है, जिंदा परमेश्वर तेरे नाल
के आमीन। तुसी एक दूजे ते भविष्यवाणी कर रहे हो, तुसी एक दूजे ते भविष्यवाणी कर रहे हो, तुसी एक दूजे ते भविष्यवाणी कर रहे हो। भविष्यवाणी दी सामर्थ तुहाडे उत्ते उतर आई यीशु मसीह दे नाम विच। इस कलीसिया दा बच्चा बच्चा भी भविष्यवाणी करनी शुरू करेगा यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे नाल चलण दे लई यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुसी सवेरे उठना है ताकि वो परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करे, ताकि वो परमेश्वर तुहाडे नाल ताकि वो परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करे। हालेलुया हालेलुया। किने लोकी ਵਿਆਹੇ लोग हाथ खड़े करो ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਫਿਰ ਸੌਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਬੜੂਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਦੁल्हा ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਠ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ। ਉੱਠੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। बोलो आमीन। बाइबल च लिखा परमेश्वर का वचन आखता है, दाऊद कहता है, हे प्रभु यहोवा मैं तेरी दुहाई दिंदा हां। तड़के उठ के वचन नूं पढ़ो। जबूर 88 अध्याय ਉਹਦੀ 13 आयत नूं पढ़ो। जिन्हों मिलिया वो पढ़े उच्ची आवाज नाल। मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। तड़के उठ के मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। ये बाइबल का सीक्रेट है, ये बाइबल का रहस्यमय सीक्रेट है। ये तुहाडे सामने खोल रहा हां। दाऊद परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆਏਗਾ। परमेश्वर के स्वर्गदूत ਤੁਹਾਡੇ फेवर च आउणगे, सृष्टि ਤੁਹਾਡੇ फेवर च आ जाएगी, एटमॉस्फेयर ਤੁਹਾਡੇ फेवर च आ जाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वचन च लिखिया, एक वचन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। वचन पढ़ो, श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय ਦੀ 2 आयत। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा, मैं सोती थी मेरा मन जागता था। सुते पे भी ਤੁਹਾਡਾ मन प्रार्थना करेगा,
सुते पे भी तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी जे तुहाडा आत्मा परमेश्वर नाल कनेक्ट हो चुका है, जे तुहाडी आत्मा परमेश्वर नाल जुड़ चुकी है, तो सुते पे भी तुहाडी आत्मा प्रार्थना करेगी, सुते पे भी तुहाडा मन प्रार्थना करेगा। तुहाडे अंदर अन्य भाषा चलदी होएगी, तुहाडे अंदर स्तुति गीत चलदे होणगे। जब तुसीं सवेरे उठोगे तुहानूं पता लगेगा मैं प्रार्थना कर रहा हां। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तुहानूं कुछ लोकां नूं अनुभव होणगे यीशु मसीह दे नाम विच। तुसीं रात नूं सोवोगे, लेकिन जदों सवेरे तुसीं उठना होएगा, तुहाडे उठण तो पहला तुसीं उठ के बैठ के प्रार्थना करदे होवोगे, तुहानूं पता लगेगा मैं तो उठिया नहीं। जेदे कान होण सुन लवे आत्मा कलीसिया नूं की कह रहा है। परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं उठा के बैठा देवेगा, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं जगा देवेगा, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं सुत्तियां नूं तुहाडे आत्मा दे अंदर, तुहाडे प्राण दे अंदर, तुहाडे शरीर दे अंदर तुहाडा आत्मा प्रार्थना करता होएगा। तुहाडी आत्मा, तुहाडा प्राण परमेश्वर दी बड़ाई करेगा, तुहाडी आत्मा परमेश्वर दी स्तुति करेगी। और परमेश्वर आखदा है, ए मेरी बहन, मेरी प्रिय, मेरी कबूतरी, मेरा सिर बरकतां नाल भरिया होया है, वो बरकतां नाल भर के सवेरे तुहाडे को आएगा, वो बरकतां नाल भरिया होया परमेश्वर तुहाडे कोल आएगा। जो तुसीं सवेरे उठोगे वो बरकतां नूं वापस नहीं लेके जाएगा, वो सारियां बरकतां तुहाडे उत्ते उंडेल के वापस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह के उत्ते वाकई वो परमेश्वर का वचन लिखा कि हे मेरी दुल्हन, हे मेरी कबूतरी दुल्हन, हे मेरी बेटी, हे मेरी बहन। इंसान को समझ नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर एक स्थान ते साडा पिता है, एक स्थान ते साडा भरा है, एक स्थान दे उत्ते वो साडा दूल्हा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखा कि तुसी जब तड़के उठ के परमेश्वर की आराधना करोगे, परमेश्वर की स्तुति करोगे, उसकी दुहाई देवोगे, वो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन के तुहानू उत्तर देगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जो सारा दिन भर तुसी नहीं कर सकते, वो तुहाडी सवेर दी 1-2 घंटे की प्रार्थना कर सकती है। अगर तुसी मॉर्निंग उठ के 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करनी चाहते हो तो मैं तुहानू दस सकता हाँ, 1 घंटा अन्य भाषा च प्रार्थना करो, 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा बाइबल पढ़ो। तुसी दिन दा दशवांश परमेश्वर नूं दे चुके, फिर अपने घर तो बाहर कदम रखो। तुहानू पैसे का दशवांश देना आउंदा है, पर दिन दा दशवांश देना नहीं आउंदा। दिन दा दशवांश, अपने समय का दशवांश परमेश्वर नूं भी दिओ। पैसे के दशवांश नाल भी दिन दा दशवांश भी परमेश्वर नूं देना शुरू करो, तो परमेश्वर की वड्डी कृपा तुहाडे ते होएगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी अज परमेश्वर की आवाज नूं नहीं सुनदे, हो सकता है तुसी हजारां विच दशवांश करदे होवो, पर परमेश्वर चाहता होवे कि तुसी लखां च कटो, पर तुसी परमेश्वर की आवाज नूं नहीं सुनिया, इस करके हजारां च नहीं। लेकिन जे तुसी परमेश्वर की आवाज नूं सुनना शुरू करता, तुहाडा लखां च दशवांश होएगा, तो करोड़ां च इनकम होएगी। पर ये आत्मिक लोकां लई वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, He can do anything। कुछ भी परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। बोलो आमीन। मैंने पवित्र आत्मा की टेस्टिमनी याद दिला रहा, एक परमेश्वर के सेवक सन जिहड़े टीवी सेंटर विच टीवी दे उत्ते प्रचार करते सन, और उन्होंने टीवी दे उत्ते प्रचार करते सन,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਸੌਰੀ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਚੌਥਾ ਸ਼ੋਅ, ਹਰ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਉਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 80,000 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਾਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। बोलो आमेन, बोलो आमेन। और उस सेवक आपने टीवी सेंटर च गए, प्रोग्राम दिता, उस तो बाद पेमेंट दे के वापस आए। उन्होंने शाम को रिया नहीं गया, उन्होंने पवित्र आत्मा ने पूछा ये पैसे कित्थों आए। पवित्र आत्मा ने पूछा ये पैसे कित्थों आए। पवित्र आत्मा ने दसिया एक प्लेन हवा च उड़ रहा है, उड़ रहा सी, वो हवा च उड़दा उड़दा क्रैश हो गया ते समुद्र च चला गया। लोग भी समुद्र च चले गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ, ਉਸ ਬੈਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ। ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ, बाइबल में लिखा, वेदी पर आग जलती रहे और कभी बुझने न पाए। याजक प्रति भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बियों को जलाया करे। वेदी पर आग जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। बोलो दूजे नूं, वेदी दे उत्ते आग जलती रहे। जोड़ा बनाओ, जोड़ा, जोड़ा कित्थे गया? जोड़े वाले वेदी दे उत्ते अग जलदी रहे। बहुत दूजे नूं, वेदी दे उत्ते अग, वेदी दे उत्ते अग, वेदी दे उत्ते अग। ओ मना विच अग नहीं जलाउणी, एक मना च भी अग जलदी है कई तरह दी। एक जैलसी दी अग भी है, ना आप ही जल जांदा बंदा। जलन दी अग भी है। ये परमेश्वर दी वेदी दे उत्ते अग है, जेड़ी प्रार्थना दी अग है। केड़ी? स्तुति दी अग है। केड़ी? प्रार्थना, प्रार्थना। ए वेदी है, तुहाडा सीड की है, इहदे विच अग की है? प्रार्थना। अग की है? अग की है? तुहाडी वेदी उत्ते अग जलदी रहे। बाइबल च लिखिया, याजक प्रतिदिन भोर को लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲੇ, ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੰਦੂਰ ਬਾਲਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਠੰਡੇ ਹਨ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਯੈਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਗੰਦਗੀ, ਕੋੜ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 7 ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ 'ਚ 7 ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਚੜੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੁਝਣੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਬੁਝਣੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੀ ਬੁਝਣ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਜਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਅਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। बोलो आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। बाइबल च लिखिया वचन नु पढ़ो, निर्गमन दी पुस्तक 16 अध्याय ओदी 21 आयत, कूच दी किताब 16 अध्याय ओदी 21 आयत नु पढ़ो। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वे गल जाता था। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। सारे जने पढ़ो इसनु, इस आयत नु पढ़ो, सारे जने पढ़ो, अपनी बाइबल नु लोग पढ़ो। खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। दोबारा पढ़ो। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। एक बार फिर पढ़ो। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। हालेलुया। बाइबल च लिखा, वचन च लिखा, भोर को वह प्रतिदिन अपनी जरूरत के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे। तब धूप कड़ी होती थी, जब धूप कड़ी होती थी
वह गल जाता था। जेड़े लोग तड़के उठ के परमेश्वर मन्ना बरसाउंदा सी, तड़के कदों बरसाउंदा सी? जेड़े लोग दोपहर नूं मन्ना लैण नहीं जांदे, जेड़े उठते 11 बजे 12 बजे 12 बजे उठ के मुंह सवार दे, फिर मेकअप कीता, फिर लिपस्टिक लाई, फिर लाल सूट पाया, फिर मन्ना लैण लई गए, तां गलिया होया सी। किन्ने लोकां नूं समझ आई? तड़के परमेश्वर उन्हां नूं मन्ना दिंदा सी, और जदों सूरज चढ़दा सी मन्ना गलना शुरू हुंदा सी। जे तुसी सूरज चढ़न तो बाद प्रार्थना करते हो तां गलियां सड़ियां चीजां मिलणगियां। गल चुका है मन्ना हो। इसलिए आज तक अमीरी नहीं आई, इसलिए आज तक समस्या नहीं गईयां, इसलिए कर्जा बाकी है कुछ, इसलिए समस्या है कि अपने आप को नहीं बदलिया। जे बंदा गलियां गलियां चीजां खावे रोज, उसकी सेहत किदां दी होगी? गलियां चीजां खा के किते पत्थरी पैदा हो जाती है, किते ट्यूमर हुंदा आ, किते रसौलियां हुंदियां आ, फूड पॉइजनिंग हुंदी आ। लेकिन जेडे फ्रेश फूड खाते हैं, जेडे फ्रेश फूड खाते हैं, जिन्होंने फ्रेश मन्ना मिलता है, वो तगड़े होंगे हैं, उन्होंने सेहत तगड़ी होंदी है, उन्होंने आत्मा तगड़ा होता है, उन्होंने प्राण तगड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई याद पढ़ो। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। बोलो आमीन। परमेश्वर यहोवा ने कहा, मूसा सवेरे तड़के उठ के तू फिरौन दे कोल जा। कितने बजे? कितने बजे किया परमेश्वर ने? तड़के उठ के कितने जा? राजा तड़के उठा हुआ। ये परमेश्वर तुहानू कहे जा सवेरे तड़के उठ के 5 बजे जा जाके सीएम नु मिल, एमएलए नु मिल। मिलेगा तुहानू एमएलए सवेरे 5 बजे? सीएम मिलेगा 5 बजे? मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जे खुदा ने कहा उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं होनी। परमेश्वर ने मूसा नु कहा, मूसा तड़के उठ के जा फिरौन नु मिलन दे लई, और फिरौन नु जाके कहे मेरी प्रजा दे लोकां नु छੱਡ दे, जे तू मेरी प्रजा दे लोकां नु नहीं छड्डांगा मैं मक्खियां दे झुंड भेजांगा तेरे उत्ते, मैं मक्खियां दे झुंड भेजांगा। और परमेश्वर ने आख्या, परमेश्वर ने कहा गोशेन देश के अंदर जिथे मेरी प्रजा रहती है उन्हां नु लग करांगा। गोशेन विच मक्खियां दे झुंड नहीं होणगे, पर मिस्रियां दे घरां विच, मिस्रियां दे चुल्हियां दे विच, मिस्रियां दे हर एक चीज दे उत्ते मक्खियां दे झुंड होणगे। लेकिन इजराइलियां दे घरां दे विच कोई मक्खी नहीं होएगी। जिहड़े तड़के उठ के प्रार्थना करते हैं, कोई शैतानी मक्खी उन्हां दे घरां च रह नहीं सकेगी। यीशु मसीह नाम विच कोई मक्खी तुहाडे घरां विच नहीं आएगी, कोई बाल जबूल दी मक्खी नहीं आएगी। हर एक मक्खी नूं मैं आख्या रहिंदा हां, बाल जबूल मक्खी नूं आख्या रहिंदा हां, छड्ड के निकल जा यीशु मसीह नाम विच। तानू नहीं पता लगा कि तानू की छड़ गई। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन बंधना नु तोड़ दिंदा है, परमेश्वर का वचन आजाद कर दिंदा है। जिथे जिथे मौत है उथे जिंदगी प्रदान कर दिंदा है परमेश्वर का वचन। जिथे उदासी है उथे खुशी प्रदान करता है परमेश्वर का वचन। जिथे निराशा है उथे आशा पैसा पैदा करता है परमेश्वर का वचन। जिथे सुखियां हड्डियां हैं उन्हां सुखियां हड्डियां विच जीवन का निर्माण करता है परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोकां दे अंदर और मिस्री लोकां दे अंदर अंतर पैदा करांगा। मिस्री लोकां दे घरां विच मक्खियां दे झुंड होणगे, लेकिन मेरे लोकां दे घरां विच मक्खियां दे झुंड नहीं होणगे। जिन्हां दी वेदियां उत्ते अग जलदी है, जिन्हां दी वेदियां उत्ते अग जलदी है, उन्हां दे घरां दे अंदर बाल जबूल दी मक्खी नहीं रह सकेगी। आज तो बाद यीशु मसीह दे नाम दे अंदर
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮਰਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਰਾਈਕਲ ਇਨ ਯਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਦ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਫ ਨੈਜ਼ਰੈਥ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ मोटरसाइकिल, नवे एसी, नवी फ्रिज, नवी वॉशिंग मशीन, नवी स्कूटर, नवी एक्टिवा, नवियां कारां। ये हो नहीं रहा तुहाडे विच। ये बहुतायत नाल होना शुरू होया यीशु मसीह नाम विच। बहुतायत दे नाल होना शुरू होया यीशु मसीह नाम विच। बहुतायत दे नाल होना शुरू होया यीशु मसीह नाम विच। परमेश्वर अपने लोगों को ਵਧਾਉਂਦਾ है, परमेश्वर अपने लोगों को ਵਧਾਉਂਦਾ है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬੋਲੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੁਝੜ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ और बुझड़ ना पाए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ और बुझड़ ना पाए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ बुझड़ ना पाए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੇ और बुझड़ ना पाए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं तड़के उठने लिए रोज? वेरी वेरी गुड। सानू देख के खुशी हुई। कईयां नूं देख के दुख हुंदा ना, कईयां नूं ही सड़ जांदा, नक ही सड़ जांदा, पर तुहानूं देख के खुशी हुई। अगर तुहाडी बेटी ते रोज आके जलेगी, तुहाडे घर दे विच शैतान जलेगा। ओदी रोज तुसी अर्थी बनाओगे शैतान दी, जो नचोगे उत्ते। हालेलुया। बाइबल च लिखिया एक लास्ट वचन, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उदी 5 आयत। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े बहोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। दोबारा इस आयत को पढ़ो। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, ध्यान ना सुनो कलीसिया, बहुत ध्यान दे नाल इस वचन को सुनो। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब अपने पुत्रों को बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। आगे पढ़ो। क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, मेरे वाल देखो। अय्यूब की करदा सी? अय्यूब रोज रोज तड़के उठ के अपने बच्चों की गिनती के अनुसार, कितने बच्चे सन अय्यूब दे नहीं पता? अय्यूब की पुस्तक चो पढ़ लीओ। कितने बच्चे सन अय्यूब दे? कितने? 100। एक जीरो घटा लो। 10 बच्चे सन, 7 मुंडे 3 कुड़ियां, 7 बेटे 3 बेटियां अय्यूब के बच्चे सन। अय्यूब सोचता सी, जेकर मेरे बच्चियां ने पाप किया होवे,
मेरे बच्चे शाम ਨੂੰ पाप करके घर आ जान। अयूब अपने बच्चों के पिछे पिछे तो नहीं सी जा सकता, लेकिन अयूब सोचता सी जिस दिन मेरे बच्चे ने पाप कर लिया वो नुकसान चले जाएंगे। इसलिए अयूब की करता सी, अयूब रोज तड़के उठ के अपने बच्चों की गिनती के अनुसार परमेश्वर दे के होम बलि चढ़ाना सी। रोज तड़के उठ के अपने बच्चों की गिनती के अनुसार, ताकि ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। कितने लोग तैयार हैं कि आज तो बाद मैं तड़के उठांगा? सब तो पहला तड़के उठ के 5 मिनट तुसी चर्च ਲਈ प्रार्थना करनी। फर्स्ट 5 मिनट पहले 5 मिनट खुदा दी धन्यवाद करन तो बाद, परमेश्वर दा धन्यवाद महिमा स्तुति करन तो बाद, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਚਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਯੂ ਬਲੈਸ ਯੂਰ ਪਾਸਟਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 अध्याय 3 मिनट पढ़ो। फर्स्ट वर्स 3 दी। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आखदा है जो तेनू आशीष दवे ओनू मैं परमेश्वर ने कहा जो तेनू श्राप देवे, जो तेनू कोसे ओनू मैं श्राप दवांगा। जेड़े लोग पास्टर लोकां नू कोसदे हन उन्हां दे परमेश्वर दे वल्लों उन्हां दे घरां दे उत्ते श्राप आ जांदा इस वचन दे अनुसार। और मैनू खुदावंद ने वचन दिता जदों मैं प्रभु दी सेवकाई च आया, मैनू खुदावंद ने कहा ये वचन तेरे ते लागू हुंदा है। इंप्लीमेंट जिद्दां ही तुसी सानू ब्लेस करोगे 3 महीने दे अंदर अंदर तुहानू इस प्रार्थना दा वड्डा असर नजर आएगा अपने परिवारां दे अंदर। छोटा असर नहीं मैं कह रहा, वड्डा असर नजर आएगा। हालेलुया। कई लोग जानते हैं कि सेवक लोग दिन दिन रात रात प्रार्थना करते हैं कलीसिया ਲਈ, और बहुत एक औरत ਉਹਨੂੰ अपने सेवक ਲਈ अपने पास्टर ਲਈ अपने मन ਵਿੱਚ बहुत बोझ आया एक औरत ਨੂੰ, और उन्हें निर्णय लिया, उस औरत ने निर्णय लिया कि मैं रोज फास्टिंग करके अपने पास्टर ਲਈ प्रार्थना करांगी। और उन्हें प्रार्थना करनी शुरू की। पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड किया। एक दिन वो डॉक्टर के कोल गई, उन्हें डॉक्टर ने जाके पूछा, डॉक्टर ने पूछा जेड़े जेड़े प्रचारक लोग हैं उन्होंने केड़ी-केड़ी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर ने दस्या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जेड़े लोग जावा बोलते हैं लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दी बीमारियां हो सकती हैं। वो वापस आ गई। उन्हें उसे चीज लई परमेश्वर दे दास ਲਈ प्रार्थना शुरू की। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੋਝ। ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। और लेडी एक दिन तो नहीं, वो पिछले 20 सालों तो अपने पास्टर ਲਈ प्रार्थना कर रही है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰਾਨਾ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करोगे, इब्राहिम के घराने ਨੂੰ ब्लेस करोगे, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करेगा। परमेश्वर अपना हाथ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਏਗਾ, परमेश्वर अनुग्रह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ करेगा और ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कितने लोग सवेरे तड़के उठने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? 4-5 ਵਜੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ।